Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे. So what we will be doing in today's video is that we will be finding an expression for electric field intensity near an infinitely long straight line of charge. Okay, so this is a derivation which is based on Gauss's law, and this derivation is a very important for the point of view of your CBSE board exams or be it any other state board exams of your class 12. अगर आप उन board exams के लिए appear कर रहे हैं, so this derivation is very important and we will be doing in the coming videos. We will be doing 3 or 4 more derivations which are based on Gauss's law. And all these derivations are very important. So I suggest you all to watch all these videos और आप इन derivations को by heart याद करिए. पहले इनको आप videos देखकर समझिए. Note them down and learn them. ठीक है, क्योंकि डेरिवेशंस के अंदर स्कोर करना इज द इजीएस्ट वे टू स्कोर इन फिजिक्स एग्जाम्स, राइट. न्यूमेरिकल्स शायद जो है वो इस तरीके के आ सकते हैं कि आपने आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अनसीन हो, जो आपने देखे ना हो, आप वहां पर पहली बार ये अटेम्प्ट करें. और बहुत सारे बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखकर घबरा जाते हैं, बट डेफिनेटली डेरिवेशंस के अंदर जो है उसके अंदर स्कोर करना सबसे आसान होता है, बिकॉज दीज आर योर सीन प्रॉब्लम्स, राइट, जो आपने करी है, हाथों से सॉल्व करी है, समझ के याद करी है. ठीक है, सो प्लीज डेरिवेशंस को मत छोड़ के जाइए इन योर फिजिक्स एग्जाम. Okay, so let's start with the derivation without wasting any time. So, what do we have to do? We have to find the expression for electric field intensity using Gauss's law. और कहाँ पे फाइंड करना है? नियर फाइंड करना है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज पे. फाइन, तो ये हम कैसे करेंगे? सो जब भी आप कोई डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, यू ऑलवेज गिव 2 or 3 लाइंस on what is the system that you are considering. Fine, so we are considering a straight line of charge, so we will write that. ठीक है, so we will write that consider a infinitely long straight line of charge having charge density lambda. Okay, so we have considered कि आपके पास जो ये straight line of charge है, इसके पास charge density क्या है? Charge density है lambda. What do you mean by charge density? Charge density का मतलब क्या है? It means that it is the total charge on that wire, on that line, divided by the total length of that wire. Fine. So the charge density lambda will be Q upon L, right? So we need to find the electric field intensity at a point P, r distance away from the wire. Okay, so I see that I have a point P which is r distance away from the wire, और मुझे उस point P पे जो है वो electric field intensity find करनी है. So let us say that this is the point P. मुझे इस point पे electric field intensity find करनी है. और ये जो point P है, ये कितना दूर है वायर से? It is r distance away from the wire. और मुझे इस point पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो हमें गॉसेस लॉ यूज करना है. तो हमें गॉसेस लॉ यूज करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल से दैट लेट अस कंस्ट्रक्ट अ Gaussian cylindrical surface passing through point P. Okay,
So what we are doing, we are constructing a Gaussian cylindrical surface which is passing through the point P. तो हम क्या करेंगे, let us construct a cylindrical Gaussian surface जो कि इस point P से पास कर रही है, ठीक है। ओके, सो हमने क्या करा, हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करा है जो कि पास करेगी अब पॉइंट P से विद, अब इसका रेडियस क्या है सिलिंड्रिकल सरफेस का, रेडियस क्या है, जितना P पॉइंट दूर था दैट इज द रेडियस, so radius of this cylindrical surface is r and the length is l. So we are supposing that हमने जो सिलेंडर ड्रॉ करा है उसका लेंथ क्या है, उसका लेंथ है l, the length of the cylinder is l. So we have considered two things, right, कि रेडियस जो है सिलेंडर का वो है स्मॉल r and जो लेंथ है सिलेंडर का दैट इज l. Fine. Now what we will do? Now we will use the Gauss's law. Fine. So we say that using Gauss's law, we can write that closed integral E dot ds is equal to charge enclosed in the surface divided by the epsilon naught. Fine. So हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं what is the charge enclosed inside the surface. So charge enclosed inside the Gaussian cylindrical surface क्या होगा, is equal to, what will be the charge? The charge will be lambda into x. Why? Because lambda is the charge density. तो चार्ज डेंसिटी को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, सो दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, और अगर मैं उसको लेंथ ऑफ द सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो दैट विल गिव मी द charge inside the cylinder, so charge is equal to lambda into L. This is the charge enclosed. ये हमने जो है वो फाइंड कर दिया. Now let us see what is the left hand side. So left hand side पे क्या बैठा है, closed integral E dot ds बैठा है, ठीक है। अभी जो closed integral E dot ds है, this is over the complete cylinder, ठीक है। So आप सिलेंडर को अगर देखेंगे, so सिलेंडर के पास जो है वो 3 surfaces हैं, फाइन। कौन कौन सी 3 surfaces है, तो फर्स्ट सरफेस इज दिस सरफेस, है ना, ये ऊपर का सर्कल जो है दिस इज द वन सरफेस इज दिस सरफेस जो कि नीचे का सर्कल है, ठीक है। तो दो सरफेसेस तो ये हो गई, सो आई कॉल दिस सरफेस नंबर 1 एंड आई कॉल दिस सरफेस नंबर 2, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड सरफेस, मैम थर्ड सरफेस इज, जो सरफेस जो है वो इसके सिलेंडर के क्या है, सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। जो सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है दैट इज द थर्ड सरफेस. So this is the third surface of the cylinder, which is the curved surface of the cylinder. तीन surfaces से बना है ना, ऊपर दो circles and then I have a curved surface of the cylinder, that is the third surface. Fine. अब सब देखेंगे कि ये जो closed integral E dot ds है, which is the complete cylinder का integration, I can write this closed integral E dot ds as the integration of E dot ds for the first surface, E dot ds for the second surface, and E dot ds for the third surface. So what we have done, हमने जो ये टोटल सिलेंडर पे इंटीग्रेशन थी उसको हमने क्या करा, सम ऑफ 3 सरफेस इंटीग्रल्स का सम लिख दिया, ठीक है। तो जो ये क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds है दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द सरफेस इंटीग्रल्स ऑफ द 3 सरफेसेस, ठीक है। 3 सरफेसेस थी ना सिलेंडर में, तो हमने क्या करा, उसको इक्वल टू लिख दिया किसके, सम ऑफ तीनों सरफेसेस पे हम इंटीग्रल निकालेंगे और उसका सम करके हमें टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds मिल जाएगा, ठीक है। अब सब देखेंगे कि
जो आपका फर्स्ट सरफेस है और सेकेंड सरफेस है, उसका इंटीग्रेशन जो है दैट विल कम आउट जीरो. हाउ इट विल कम आउट जीरो? कोई अच्छा गेस कर सकता है अपने माइंड में? क्यों जीरो होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड इंटीग्रल जीरो? द फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज जो आपका सरफेस जो है, सरफेस एरिया वेक्टर जो है, दैट इज मेकिंग a 90 degree angle with the electric field. How? Let us see. अब सब बच्चे देखेंगे कि अगर एक पॉजिटिव लाइन चार्ज है हमारे पास, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज लाइन है हमारे पास चार्जेस की, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, कैसी है? इट इज गोइंग आउटवर्ड्स, अवे फ्रॉम द चार्जेस, अवे फ्रॉम द लाइन, इट इज गोइंग. ठीक है, इस तरीके से जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. सो अगर मैं पहले एरिया को, अगर मैं पहले सरफेस को देखूं, ठीक है, एवरीवन विल लुक एट द फर्स्ट सरफेस. जो मेरा फर्स्ट सरफेस है, उसका अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे एक ds एलिमेंट ले लूं, इफ आई टेक अ ds एलिमेंट ऑन दिस सरफेस और उसके ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, सो दैट विल लुक लाइक दिस. इस तरीके की नॉर्मल होगी, राइट? द नॉर्मल विल बी लाइक दिस. दिस इज द एरिया वेक्टर and the direction of electric field is this. This is the direction of your electric field. तो क्या मेरा normal vector and the electric field is making a 90 degree angle? Yes, ma'am. The n cap and the electric field is making an angle of 90 degree. That means कि जब मैं इसका E का और ds element का dot product निकालूंगी, that will come out zero. Perpendicular vectors का dot product is zero. So that means इस फर्स्ट सरफेस के लिए जो वैल्यू है इंटीग्रेशन की, दैट विल कम आउट जीरो. सिमिलरली फॉर द सेकेंड, अब सेकेंड के लिए सब बच्चे खुद सोच सकते हैं दैट इफ आई टेक अ ds एलिमेंट ऑन दिस सरफेस, द डायरेक्शन ऑफ n cap will be like this, the electric field will be like this, and I know that again the angle between the area vector and the electric field vector is 90 degree. Again the angle is 90 degree. Hence आपका जो second integral है that will also be zero. Okay, so we will write, ठीक है, आपको इसको words में लिखना पड़ेगा that for surface 1 and 2, for surface 1 and 2, the electric field vector is perpendicular to the area vector. Hence, the E dot ds is equal to 0 for both surfaces 1 and 2. Hence, they will not contribute, है ना? They will not contribute to the total electric flux through the Gaussian surface. So they will have no contribution to the total electric flux. ये क्या है? This is the total electric flux, right? ये जो closed integral E dot ds है, that is the total electric flux. So they have no contribution to the total electric flux through the Gaussian surface. Why? Because electric field is making a 90 degree angle with the area vector of the first surface and the second surface. Fine. I hope सबको इतना clear हो गया हो. So we will write that this is equal to only 3 E dot ds. Fine. हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. First and second will be 0. ठीक है? First integral and the second integral will be 0. Okay. So let's move. अब हम क्या करते हैं? हम फिर से फिगर की तरफ चलते हैं. अब थर्ड वाले इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, राइट? दैट इज द ओनली इंटीग्रल विच इज लेफ्ट. अब थर्ड इंटीग्रल को अगर मैं देखूं, तो अगर मैं एक ds एलिमेंट ड्रॉ करूं इस तरीके से ऑन द थर्ड सरफेस, ठीक है,
अगर मैं एक ds एलिमेंट ड्रॉ करूं और मैं उसका एन कैप एरिया वेक्टर निकालूं तो इसका परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस एन कैप। सो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप एक दूसरे के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं? यस, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद ईच अदर। सो यहाँ पे जो आपका थीटा है दैट इज इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट दैट दिस इज closed integral 3 e ds cos 0 degree, which comes out to be equal to e ds. So now I have to integrate e ds, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी और इसको चार्ज enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख दूंगी, I can find the electric field. Okay, so now I have closed integral e dot ds. So I have e ds for the third surface is equal to charge enclosed. What was the charge enclosed? Lambda into L divided by epsilon naught. ये चीज कहाँ से आई? मुझे पता है गॉसेस लॉ कहता है closed integral E dot ds is equal to charge enclosed by epsilon naught. चार्ज enclosed है lambda L एंड क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds की वैल्यू आई है E ds फॉर द थर्ड सरफेस। तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया and we get that integration of E ds is equal to lambda L by epsilon. Fine. अब हम लोग क्या करेंगे? We write E into, now we have to integrate ds, which means that I want the area of the curved surface. ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे एरिया चाहिए of the curved surface of the cylinder. So we have ds for the third and this is equal to lambda L by epsilon naught, and we know that closed integral ds is actually area of the curved surface of the cylinder. क्या है ये? Area of the curved surface of the cylinder, and that is equal to, ये किसके इक्वल है? That is equal to, क्या होता है curved surface का area of a cylinder? That is 2 pi r l. ठीक है, क्या होता है? 2 pi r l. So we will put this value in your this equation. इस equation के अंदर हम इस value को put करेंगे. So let's put E 2 pi r l is equal to lambda L by epsilon naught. You will see that this L and this L is getting cancelled. So we get, हमें क्या मिल जाएगा? E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught r. ठीक है, सो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया that जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, that is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, and this is the expression that we had to find, that we had to derive. ठीक है, so this is the final expression for your electric field near an infinitely long line of charges जिसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मुझे इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो मैं कैसे ग्राफ ड्रॉ करूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का? So this is the electric field and this is the R. So that electric field, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैम जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है that is proportional to 1 by R. That means जो आपका ग्राफ होगा it will look something like this. यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 by R के प्रोपोर्शनल है, तो वो किस तरीके का ग्राफ शो करेगा? मुझे एक 1 बाय आर वाला ग्राफ जो है वो मुझे शो करेगा. एक 1 बाय आर जो फंक्शन, 1 बाय एक्स का जो फंक्शन अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इसी तरीके का आता है आपका. ठीक है, सो दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप जो है वो दूर जा रहे हैं, आप आर को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, जैसे जैसे आप चार्जेस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है? दैट इज डिक्रीजिंग.
सो आपके पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरीके से कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन द आर, ठीक है, for an infinitely long line of charges. So you will say that electric field is inversely proportional to small r. ठीक है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, that is inversely proportional to small r. जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा। और आपसे एक ग्राफ के तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे कैसे डिपेंड करती है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको 4 ग्राफ दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो ठीक है। तो आपको ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को जो है टिक करना पड़ेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। फाइन। So this is a very important derivation, and once again saying, if you're sitting for your board exams of your class 12th, or you're preparing for some other entrance exams, this derivation is very important. Obviously बात है, अगर आप किसी entrance exam के लिए prepare कर रहे हैं तो derivation important नहीं है, the result is important. बट अगेन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए नेवर अंडर एस्टिमेट द थ्योरी, ठीक है, अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे, अगर आप थ्योरी में वीक होंगे आपको प्रॉब्लम्स करने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग इन योर कॉन्सेप्ट्स और डेरिवेशंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए। अगर आपको एक बार डेरिवेशन समझ आ गई तो उसको याद करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। So I hope आपको ये derivation अच्छे से समझ आई हो. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching. I will see you all in the next video. So bye bye till then. Tata.